I'm getting very emotionally weak. I easily get emotional and start crying. Even a small incident makes me cry. Anything which is against mind makes me cry. Also, I tend to be emotionally attached with people and end up again crying and hurting myself only. Please guide me how to strengthen the mind and be emotionally strong, to fight when required and accept the situation as it comes. When we have an unstable mind, we cannot be emotionally strong. And I'm saying this again and again, and I still repeat this for your understanding, that if you do not strengthen your mind with spiritual practice, you will be ending up hurting yourself again and again via infatuation, false friendships, false hopes, desires, and the involvement of mind with anything and everything. As you are vulnerable, this means you are going to be hit again and again. You cannot stop the blows coming from others, but you can always make yourself strong. You cannot change people, but you can change yourself. And if you cannot change yourself, then you should not hope that people will change. Right? This is not a nuclear science. If you are weak, you know what? You will tend to attract those people who know this. Somehow they will sense it and they would feel, here is a fool, and now we can have a free ride. Most of the times the intelligent girls in colleges end up having stupid boyfriends. Please excuse me for saying this, but I am going to say this. Who is so bothered about his looks, shirt and matching jean and shoes to go, and eyeglasses, the nice swanky ones? This means this guy is not putting any time in improving in his brain. He's just working on his body, and the person who is not working on a brain is a fool. He's a Dumbo. I'm not saying that you cannot be beautiful or handsome if you are intelligent, or if you are not intelligent, only then you will have bad or ugly look. You can be both, inside out beautiful, inside out handsome. But the thing is, how would you know that the other person is intelligent or not if you are not intelligent? So if you are a fool, you will end up befriending another fool, and when two fools meet, that is called fool's paradise. If you are intelligent, you will use your intelligence in making your friends. And if you don't find intelligent one in the crop which is around you, then you will wait. Why do you need a friend? Your book can be your best friend. Your knowledge can be your best friend. You are occupied with your own creative sensibilities and abilities. Why would you need a friend? Yeah, you can have a classmate where you can share your notes and
study together, but that doesn't mean those who are in your class, those who study with you, should also be your friend. They can be, and they might not be. तो अगर आपके पास अकल नहीं है तो आप कुछ तो बेवकूफ़ी करोगे। और अगर आप अक्लमंद हैं तो आप ज़्यादा किए गलती करोगे नहीं, और करोगे तो जल्दी समझ जाओगे कि ये ठीक नहीं हो रहा। सो बहुत खूबसूरत लड़कियों के अक्सर कद्दू से बॉयफ्रेंड होते हैं, और वो कद्दू इन द सेंस दे आर नॉट इंटेलिजेंट एंड दे आर गोइंग टू, दे आर बट स्मार्ट इनफ, दे विल यूज दिस गर्ल. Why send her 2 notes? You are looking beautiful, your hair is very nice, your dress was very, you are this, you are that. 4 notes भेजो, बेवकूफ लड़की फ्लैट. अब उसे बोलो मेरा होमवर्क कर देगी, नोट शेयर कर ले, कर देगी, मेरा प्रोजेक्ट तू कर दे, वो भी कर देगी. क्यों? वो नोट आ जाते हैं ना उसको. यू लुकिंग सो, कोई कहता ही नहीं है कि सुंदर हो. और अक्सर मैं एक लड़की को जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से, त्रिजटा की बहन है वो, या कहो शूर्पणखा की बहन है वो, और वो उसकी माँ मुझे कहने लगी कि एक लड़का ये पढ़ाई कर चुकी है, जॉब कर रही है, और 2 साल से एक लड़का इसके लिए वेट कर रहा है, और ये कहती है मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं. मैं अच्छा, मैं तो दिल तो करे कहूँ कि इसने खुद ने कभी शीशा देखा है. आजकल वो फैशन है ना, बुफॉन, they raise the hair, all these girls have this, pinned up puff. It's a ordinary word. The actual word is buffon. I might not be practicing fashion, but I'm pretty aware from where it is coming. It's a French word, buffon, where you raise the hair. 2 घंटे लगा करके वो अपने पिन अप करती है, पर जो शक्ल बिगड़ी हुई है उसको कैसे ठीक कर लोगे आप? All the makeup, all the false eyelashes and lipstick and mascara isn't going to make you beautiful if your cheeks are filled with pimples and acne. And if you're not wise enough to get it treated. मैंने कहा भाई ठीक है, उसको ये लगता है कि हूर पर ही वही है. Let her enjoy whatever she wants to think about herself. ये अधिकार हर लड़की को है ऐसे कि वो अपने आप को सुंदर माने, अच्छी बात है. लेकिन अगर आप सुंदर हो तो आपको किसी बॉयफ्रेंड की लिखी चिट्ठी की वेट नहीं होनी चाहिए कि वो आपको लिखे और कहे तुम सुंदर हो, और फिर तुमने लगे कि हाँ मैं सुंदर हूँ. अगर हो तो हो, तुम्हें किसी की वेट थोड़े होना चाहिए. लेकिन आप वेट करती हैं और फिर इस वेट को कोई पूरा कर देगा, और 2 या 4 या 6 वो SMS विद इमोटिकॉन्स आए, 5-6 ईमेल्स आए, 2-4 फेसबुक में चैट हुए, हो गए सीरियस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. And then, because the person was using you, and sometimes even the girls are using the boys, it happens in a vice versa also. कभी कभी ऐसा होता है जिस लड़के को उसकी माँ से पूरा प्यार न मिला हो, ये भी है एक कारण साइकोलॉजिकली. अगर उसको माँ से उतनी सपोर्ट ना मिली हो, या उसकी माँ एक कॉन्फिडेंट महिला ना हो, तो ये लड़का कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है. तो वो हमेशा अपने मैटरनल लव को ढूंढता रहेगा. तो जिस किसी लड़की ने भी कह दिया तुम बड़े अच्छे हो, तो शुक्र है किसी ने तो कहा मैं अच्छा हूँ, उसके कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए. तो फिर मिसयूजेज होती. Know this, when you are dependent on others for appraisals, you are going to become a slave of the person whosoever will give you nice applauding comments. शायर कहता है, परवाह नहीं है मुझको
मेरे दुश्मनों की, परवाह नहीं है मुझको मेरे दुश्मनों की, मुझे ए खुदाया मेरे दोस्तों से बचाना। शत्रु का तो पता होता है ये दुश्मनी करेगा, पर उन दोस्तों का कैसे समझ लगे जो आपको घुन की तरह चाट जाने वाले हैं, जो अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करने वाले और एक दिन आपको डंप करने वाले। फिर कहूं, when you are in infatuation, then any relationship you might have, and if somehow that relationship breaks, you are going to cry. You have insured yourself for this. पक्का guaranteed है अब। So we have to have a very strong mind which is not dependent on somebody. And actually, one should only go in a relationship when you are happier and contented within your own self. Now you are ready to have a relationship at par. If you are hungry for love, for praise, for compliments, for happiness, you will end up in a messy situation. So be intelligent. How will you become intelligent? By having a stable mind. Stable mind मतलब ऐसे ऐसे डगमग नहीं करता रहे सारा समय, इन्फीरियरिटी से नहीं भरा हो, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरी ज़ुबान बहुत अच्छी नहीं है, या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। पिछले दिनों हमारे यहाँ पर NRI शिविर था, इंग्लिश में बात करने की ऐसी रखी गई क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो हिंदी नहीं जानते थे। तो मैंने एक को कहा कि आपको आज की सेशन लेनी है। वो बोले मैं सेशन कैसे लूँ, मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती है। मैं देखिए अंग्रेज़ी नहीं आती है तो ये आप सबके सामने बोल देना, ऐसा नहीं कि तुम्हें आती नहीं, तुम्हें आती है, लेकिन तुम्हारी वोकैबुलरी कम है, तुम रोज़ बोलते नहीं हो। तो ये बात आज पहले बार आप सबके बीच जब जाएं तो कह देना, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी रोज़ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी में मैं सोचता नहीं हूँ, इसलिए अंग्रेज़ी में मेरे लिए बात करना मुश्किल है। लेकिन चूँकि परंतु किंतु मुझे ये कहा गया है कि मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा, पर कहीं अटक गया यू कैन हेल्प मी। क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी जानते हैं, तो कौन सा एग्जैक्ट शब्द होना चाहिए तो मैं अटकूंगा, तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। जो डर था कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती वो गया, बोलोगे आप। और सच ये है जब आपका डर चला जाता है तब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द सेशन किसी ने कहा अरे आप तो ठीक ठाक अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने आपको क्या मालूम अंदर कितना कांप रहा था। समहाउ हो गया पूरा, लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। अच्छा, अगर मुश्किल अपने आप को देनी हो तो ये मत बोलो और बिहेव ऐसे करो कि तुम्हें आती है, तो आप अपना उल्लू खुद बनाओगे ना। तो फिर बेटर क्या हुआ, कह देना कि मेरे में ये कमी है, या उस कमी को छुपाना, कह देना। इट्स मच सिंपलर। अब ये सच बोलने की हिम्मत किस में होगी? जिसके अंदर एक स्ट्रांग फाउंडेशन है। और स्ट्रांग फाउंडेशन किसकी होगी? जो कुछ यौगिक अभ्यास करते हैं। एक बात बताओ, आप खाना ना खाएं 4 दिन, क्या होगा? हाँ, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, और चक्कर आएंगे, और बीमार हो जाएंगे, और बुखार भी हो जाएगा। अच्छा, रोटी ना खाने से बुखार हो जाता है?
बेहोश हो जाएंगे। अच्छा चलो मान लेती हूँ। अगर शरीर के लिए रोज खाना खाना जरूरी है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर शरीर को भोजन देना जरूरी है और आप भोजन खाते हैं तो आपके मन का भोजन क्या है? योगाभ्यास। और अगर आप योग अभ्यास नहीं करते हैं तो इस एनालॉजी को समझिए, इस एग्जाम्पल को समझिए कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप 10 दिन तक कुछ खाए नहीं पिए नहीं, डिहाइड्रेशन और वीकनेस से आप अस्पताल में पहुंच जाएंगे। तो अगर शरीर को रोज खाना चाहिए तो आपके मन को भी तो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए ना, स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए। अब आपके माता पिता को मालूम नहीं तो रोटी दाल चावल परांठे खिलाने में तो वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं बच्चों के, लेकिन चूंकि उन्हें खुद को मालूम नहीं है और वो खुद वीक हैं अपने मन में, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और अगर उनको ज्ञान है और अगर वो खुद एक अभ्यासी हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में अभ्यास करने की प्रेरणा भी दे देंगे। लेकिन जिनके माता पिता कोई अभ्यास नहीं करते, देखो मेरे यहाँ आते तो हजारों लोग हैं, लाखों सुनते हैं, हजारों आते हैं, लेकिन ये आने वाली हजारों की भीड़ घर में प्रैक्टिस भी करती है क्या? जी नहीं। क्योंकि उनके मन में बस इतनी बात अभी तक समझ आई कि गुरुजी के जाओ, दर्शन करो, लंगर खाओ और गाना वाना हो तो गाओ कीर्तन में और बड़ा मज़ा करो और घर वापस आ जाओ, और घर में आकर के फिर तू तड़ाक मेरी तेरी राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करते रहो फिर। Just like any normal other person who is not exposed to satsang, they are not practicing themselves. Do they wake up early? No. Do they do any yogasana? Huh? No. अब वो टीवी खोला, सत्संग सुन लिया, बड़ा अच्छा था, अच्छा फिर तुम्हें उसका क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ उसका? So you have to be a practicing disciple, not a listening disciple. You should be practicing what is being taught. आप मुझे देखते हो आसन में बैठती हूँ, एक बार भी देखा कि पैर हिलाती हूँ। अभी अमेरिका में मेरे लिए बड़ी सुविधा हो गई थी, वो कुर्सी की डेप्थ बहुत थी तो मैं बिना किसी सपोर्ट के बैठती थी, एंड दैट इज मच कंफर्टेबल। सिटिंग विद दिस सपोर्ट इज टू बैड। If your lumbar is strong, if your back muscles are strong, if your spine is strong, you will sit straight. And if you cannot sit straight, and if you are moving around, that is a sign of a very weak muscles. मैंने कल भी कही ये बात कि 15 साल से लेके 30 साल की उम्र तक, एक्चुअली तो उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान आपके शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। और वो जो बीमारियां हैं वो एक ही दिन में नहीं बनती, बड़ी मेहनत लगती है ब्लड प्रेशर बनाने में। रोज चिंता करो, रोज चिंता करो, रोज लड़ाई करो, रोज अपने शरीर में कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन करो, रोज रोज, और नमक ज़्यादा खाओ और कुड़ते रहो और चिढ़ते रहो। कितनी मेहनत है, 8-10 साल में बीपी हाई हो जाएगा, और ये करते रहो, नस फट जाएगी, मरोगे, कफन पक्का मिल जाएगा आपको। So if you hate yourself and if you don't wish to live a healthy long life, do not practice any yoga. Because if you will become healthy and you will live long, and if you don't want to live long, do not practice it. Make it meaningful. Make it very meaningful. And you can do that. And you have to do that, not for me, but for yourself.
but for yourself. As I said it, I repeat it again. You are in a very vulnerable age. Your hormones are going berserk. And your hormones are pushing you to have a relationship, have a boyfriend, have some, good time. It is not your brain or mind, it is just your body hormones which is pushing you to do that. Without thinking the consequences, you will end up in a messy situation. एक स्कूल में ये हुआ. The girl was found with the boy in a bathroom by a teacher. Right? So the teacher took them to principal. It's a co-education school. Principal called the parents. They said, we cannot have this nonsense happening. They are here for study, and your child doesn't want to study, so we don't want this child in our school. They took a very hard decision. उस लड़की को काउंसलिंग चाहिए थी, उस लड़के को काउंसलिंग चाहिए थी, कोई समझाने वाला चाहिए था, पर समझाया किसी ने नहीं, स्कूल से बाहर निकाल दिया. अब मिडवे सेशन में आपको स्कूल से बाहर, एक तो सबको पता लग गया कि ये इसने ऐसा किया है, फिर जितने मुंह उतनी बातें, हो गया ना मुश्किल. स्कूल गया, साल बर्बाद हुआ, स्कूल बदलना पड़ा, एक ब्लेम लग गया, माता पिता रो रहे हैं कि ये हमको क्या देखना पड़ रहा है. It was just a small fling, it was nothing serious, just a small fling. आप फिल्म में देख रहे हैं, kissing scene is okay these days. You are watching the kissing scenes here and there. You are watching girls wearing skimpy clothes, short skirts, doing the dance. It's very, very tantalizing for the boys. And now what they see, they want to copy that. तो वो फिर ढूंढते कौन लड़की है जो मेरे साथ वो गेम कर सके जो मैंने स्क्रीन में देखी है, और कहीं लड़की भी ढूंढेगी कौन है जो मेरे साथ ये गेम कर सके. और फिर जब हमारी लाइकिंग एक सी होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको. पर प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां उसके कॉन्सिक्वेंस फिर सामने आ जाते. I believe this very firmly. Once you are an adult, and I believe legal age is, what is legal age? 18, right? Once you are 18, once you have a, not master's but at least bachelor's degree with you, then do whatever you want to do. But do not do it on expense of your studies. स्कूल, वो प्रिंसिपल एकदम दकियानूसी बकवास अकल वाले लोग, उन्हें समझ होनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी. और वैसे देखा जाए कि हर चीज की एक उम्र होती. डू यू नो दैट एट वन टाइम द गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट एज ऑफ 14, 15, 16, राइट? अभी सरकार कहती है इलीगल है, इट्स अ चाइल्ड मैरिज, इट इज़ नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड, आफ्टर 18 करनी चाहिए, बिकॉज हर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम प्रेग्नेंट और टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट? तो कहते नहीं 18 के बाद करो, लेकिन वो बहुत पहले कर देते थे. उसका कारण था, एक कारण ये था कि दैट इज द एज व्हेन सेक्सुअली अराउजल्स आर गोइंग टू बी देयर. तो हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको ये लगता था कि लड़का अगर 25 तक आ गया और लड़की अगर 23 तक आ गए, 22 तक आ जाए, तब करना चाहिए. जो समझदार लोग होते थे वो इस उम्र में करते थे. राम जी की शादी 25 के बाद हुई है, आफ्टर द गुरुकुल. 25 में पूरा होता था, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई है. लेकिन गांव में, देहात में वो छोटे से छोटी उम्र में शादी कर देते. क्यों? बोले शादी नहीं करेंगे, इसके ऊपर पहरेदारी कौन करे, अब शादी कर दो, अब ये जाने, इसका घर वाला जाने और इसके ससुराल वाले जाने. पर क्या ये सही होगा उस लड़की के लिए?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तो नहीं है। एजुकेशन इज अ मस्ट, राइट? क्योंकि ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी, अपने पैर पे खड़ा आप कर देती है, आपको समझ ज्ञान देती है, आपको नॉलेज देती है, हाँ, आपको सक्षम बनाती है।